Hello, everyone, and thank you for being a part of our webinar, Community Voices United for Land Stewardship. This event is being hosted by EcoBari, a collaborative working to enhance ecosystem-based adaptation for resilient incomes. This is the fifth in our series of Southbound Resilience webinars, which is supported by Honeywell. As many of you know, today is the UNCCD's Day of Desertification and Drought, which aims to raise awareness for the extent of land degradation taking place across the globe. The theme for this year's is land stewardship, or the relationship that a person shares with the land. It takes into account multiple dimensions, economic, ecological, social, and cultural, to find ways to care for and sustain the land that address all these different priorities. And when we came across this theme internally at EcoBari, Water, and WPress, we realized the need to actually platform those voices who play this balancing act day after day. हमारा ये वेबिनार 2 भाषाएं में होने वाला है, हिंदी और अंग्रेजी। वाटर और इकोबारी में हम इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक तरीके के रूप में जो समुदाय को जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव से बचा सकता है, पर्यावरण की सुरक्षा करके। लेकिन ईबीए प्रोजेक्ट्स की सफलता के लिए समुदाय को सही साधन और सहायता मिलना चाहिए, जैसे सिस्टम्स ऑफ लोकल गवर्नेंस और एक सस्टेनेबल आमदनी की स्रोत। आज हमारे साथ 3 अलग-अलग राज्यों से लोग जुड़े हैं, जो उनके काम से दिखा सकते हैं कि सामाजिक विकास और स्वस्थ वातावरण में क्या संबंध है। वे हमें बताएंगे कि आपस में उनके प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे संभालते हैं और इससे उनके समाज पर क्या प्रभाव हुआ है। इस पैनल डिस्कशन से पहले we have Professor Anil Kumar Gupta, Professor and Head of Environment, Climate and Disaster Risk Management Division in the National Institute of Disaster Management, affiliated with the Home Ministry. Professor Gupta has over 25 years of experience working in the area of disaster management, environment, and climate resilience. He has prepared a number of national plans, including national and sectoral disaster management plans, national drought manual, human resource capacity development, and more. He has also worked with several government departments, including agriculture and farmers welfare, health, environment, forest, and climate change, and more, to develop tailored adaptation and disaster management plans. In addition to his role at NIDM, Professor Gupta is the Program Director of the Center for Excellence on Climate Resilience and the Nodal Officer for International Cooperation. He is an expert team member of the World Meteorological Organization's Climate Statement and South Asia Core Group member of the IUCN Commission on Ecosystem Management, and the Vice Chairman of the Association of Occupational and Environmental Health in India. He's the principal editor of the Springer Nature book series on disaster resilience and green growth. He's on the board of many research journals and has contributed to over 150 publications. I'll pass the mic on to Professor Gupta now to give us an overview about the impacts of land degradation in India and the need for vulnerability assessment to ensure effective adaptation planning. Over to you, Professor Gupta. Thank you, Ishaji. So first of all, my compliments to WOTR, and all the partner institutions who are concerned on the reducing land degradation and also working to reverse it. As UNCCD is also going, in fact, has already undergone a huge transformation and thinking process. Earlier, when we were talking about land degradation, the focus was primarily on the drought and desertification. But now we have realized that there are several activities and several sectoral dimensions as well, which are contributing directly and indirectly to the quality and the degradation, basically. And if we recall the UNCCD COP14 that has been hosted by India in 2019, now it is going to be 5 years. Very interesting thought process started. And first time, countries also started talking that we need to decide and act for giving land back to nature. I think
very difficult thing, because at the time when everyone wants to grab more and more land, if people say that we have to decide and we have to act on giving land back to nature, it appears very difficult. But there is no other way. It is highly inevitable and implicit, and that is for the sustainability of the human race itself. And also, that was the COP that also talked about a global water initiative. So when we talk about land, I would say uh, at the beginning that two aspects I focus or I consider that very important. One is that land is basically the producer of everything. Even if we are talking about clean air initiatives, even if we are talking about the water initiatives, even if we talk about the bioproductivity, land is fundamental to everything. And even besides this also, even the built up environment, their sustainability also, land becomes fundamental. And the second thing, land, the way it is defined, I think we need to have a relook. We need to be a little more holistic, and I would say a little ecological in thinking about land in a new way. And I think that's very important, because I consider land a living entity. I consider land a dynamic entity. It is not just a piece of some material or a piece of some mixture of materials, and we call it land. So the entire understanding, the scientific and social both, I think that needs a transformation or a relook. And because land is something which can inhabit the living organisms, which can provide breathing, which can provide some chemical activities, which can provide biological activities. I think that that's important. So this is I have a presentation for a few slides, and I made it a little simpler, so that it can help set the tone and flag some of the issues which appear important. So as suggested, I will be using a little bit of Hindi also. मैं हिंदी का भी प्रयोग बीच में करूंगा, क्योंकि हमारे कुछ प्रतिभागी गैर अंग्रेजी भाषी हैं और वो हिंदी समझ पाएंगे. सो पहली चीज है कि द वे वी हैव बीन डिफाइनिंग लैंड डिग्रेडेशन, उसको भी एक बार हमें और सोचना पड़ेगा. Of course, we have considered the ecological productivity and economic productivity. Those are very important. But when we start looking at land as a system, so first thing, and in fact, this is not new. For decades, we have been talking about that land we have to consider as a system, and I think that will help uh, identify that the small bit of intervention that we can undertake to reduce the rate of land degradation. तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि लैंड जो है वो एक कोई मटेरियल नहीं है, एक कोई फिक्स एंटिटी नहीं है, डेड एंटिटी नहीं है, एक सिस्टम है. तो उसको देख करके जब हम चीजें चलते हैं, तो लैंड के रिस्टोरेशन के लिए बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होंगी. इन चीजों को ध्यान में रखना है, और इसी तरीके से लैंड डिग्रेडेशन को हमें देखने की जरूरत है. बट ये भी सही बात है कि इकोनॉमिक जो प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा लिंक होती है, बिकॉज गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड पीपल, they also need they have social aspirations, they have the livelihood aspirations, they have health aspirations, and those are always connected with economic prosperity. लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे कॉजेज हैं. तो चाहे वो ओवर ग्रेजिंग की बात करें, अभी ओवर ग्रेजिंग के साथ और भी बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, डिफॉरेस्टेशन है, या अनसस्टेनेबल जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं, अर्बनाइजेशन है, या जो हमारे जो इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं, जो एलियन स्पीसीज भी जिनका एक कैटेगरी होती है, और बहुत तरीके के जो इरोजन जो सॉइल के और लैंड के हैं. लेकिन इसके साथ ये भी देखने की जरूरत है कि ये जो लिमिटेड 5-6 क्लासेस हमने लैंड डिग्रेडेशन के कारणों की रखी हुई है, दिस इज अ लिमिटेड लिस्टिंग. In fact, past 20 years or so, the kind of development, and more particularly in the developing nations, including in India, we have seen
a number of other interventions have come which are contributing to land degradation even faster than the known ones. For example, the ones associated with urban development and also industrial development. अभी मेरीन लिटर के अंदर देखेंगे आप हमारा जो कोस्टल लैंड है the huge the areas are under degradation and that is increasing fast. जितनी भी metropolitan cities हैं हमारी all the major cities in India we have the heaps. Okay, I will even reduce even to lesser also. I did it to 7%. इसके बाद भी अगर हो तो बताइएगा. I will log off and log in. You can try to go on mute and then come back So, off mute. most of major cities we see that how land has been grabbed by the waste management system. A huge land is under major the waste heaps. आप बहुत बड़े दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर और भी जगह आप देखेंगे huge waste heaps are there, and that is affecting land in several ways. एक तो आपको जो we can see the aesthetically how the land is affected, but land the productivity, land quality is being affected in several ways, including whatever the leachate is coming, hazardous materials are coming along with that. So entire the soil contamination, the groundwater contamination, and that again entering into a cycle. So basically, we have to see that in a holistic way that how the things go in a cyclic way. Then even if we are looking at what are the implications of land degradation, there are several dimensions. We often talk about that the impact of land degradation on in terms of desertification, drought, so impact on food security, loss of biodiversity, pollution. But now we have to step up and see that how it is contributing to the overall the goals of health for all, even for housing for all. So there are several other dimensions which are emerging as important when we are talking about land. And that is because of the fundamental truth that everything takes place on land. All kind of developmental activities are undertaken on land. And the last point that is mentioned here, climate change. I think the climate change mitigation also has to be seen from the perspective that whatever we do for reducing greenhouse gas emissions or even for adaptation, everything, most of the things are taken up on some piece of land. So that is also very important. But this is the irony that in major discussion forums also, many times we get parallel sessions. People say, oh, the experts are talking about adaptation, and there is a session that is talking about land degradation and land restoration. So many times at policy levels also, at operational levels also, there is a huge disconnect. So this, how do we address this disconnect? Uh, I think that is a challenge becoming complex and complex day by day with the upcoming new and new themes as well. So next, please. Two pictures. One is I think 4 5 years back. This data is a little old. Showing land degradation. So entire country is under a different rate of land degradation. Some areas we can see the more critical nature we can see of land degradation, and we can have to intensify our efforts while our land restoration efforts are also prioritizing those areas. But we have to revisit it. I think this is now required. That how do we link with climate change adaptation? How do we link it with sustainable achieving sustainable development goals? Not only till 2030, but also beyond, because now we have already started thinking that what beyond 2030. And more particularly, India when has a huge financial mechanism for disaster mitigation. So if we use that kind of vehicle, I think that is also equally important. The India's target almost less than 1/3 that the land under degradation goes to around 100 million hectares, but we are targeting that maybe 26 million hectares was the target for 2019. Now it has further increased. But how do we really do that? Only having targets would not suffice. We have to revisit the programs and have to focus more on local level. So next, please.
Next slide, please. Yeah. So I will not be reading everything, but the key focus is that we have to move beyond the conventional thinking of land degradation. Like we were talking about erosion. Now there is a different kind of erosions also are under focus. Now recently the disaster management system in India, we came up with a strategy on the river erosion. I think river erosion is again engulfing lot of land areas, more particularly the rivers in Bihar, Uttar Pradesh, and many other parts of the country. Such kind of losses are there. Salinity was earlier only in the areas where the intensive the irrigation facilities were developed, but now the salinity ingress is besides the coastal areas and those high irrigation areas. There are other areas also where the salinity of the land is emerging as a major issue because of the anthropogenic contributions of a lot of nutrients, a lot of pollutants or contaminants. So these are the things. Shifting cultivation, certainly now there's a huge change in these kind of things, but we have to see the in a holistic way that how in mountains we are witnessing the new kind of land degradation. Even development, the faster development nowadays in mountain areas for our developmental needs, that is also contributing to huge landscape changes, huge erosion, and then that is leading to siltation also, a number of new the landslide areas and other slope erosions also. So 20 years back, what we have been focusing on land degradation, and now how do we look at land degradation? There is a substantial change, and climate change is also one of the major contributor, but it is not necessary that everything we contribute to climate change. But there are a large number of non-climatic factors that contribute to accelerating land degradation. So we need to study those systematically, and that is very important because we when we talk about vulnerability assessment, so we have to come up with a set of parameters to come up with a vulnerability assessment framework. So next, please. When we talk about vulnerability and when we look at literature, people have studied the land vulnerability of land to degradation because of climatic change or because of other the environmental and anthropogenic changes. And they use a different set of parameters. So I think one challenge is that how do we look at and develop a model that is little flexible also and can be customized to befit the local conditions or the regional specific conditions. For example, if we are to study the vulnerability of land degradation in a mountain area near the slope or far away from the slope or in a coastal area or in a dryland areas, what kind of set of parameters we need to have, and then maybe what kind of scoring systems we can have. But some kind of a common understanding need to arrive at. Then basically the vulnerability is the set of parameters, but how are these things aggravated? I think that is also very important so that we can have the projected scenarios of futuristic risks given the business as usual. So the type of scenarios we talk about, the business as usual and the preferred scenario. So preferred scenario is when we have the mitigation interventions in place, but business as usual that how the things go on. But beyond these two, business as usual and the preferred scenario, there is a third type of scenario now emerging abruptly, and that also contributes to a lot of uncertainties in our planning process, in our decision making process, and that is because of the extreme events. Many times the extreme events accelerates or aggravates the kind of erosion and land degradation to a very faster and high rate and very quick kind of things. Even in Himalayan areas and the riparian parts also, like the river erosion we talk about. So this is also very important that sudden kind of intervention, sudden kind of events that can accelerate or can cause land degradation. So those are also important. I would also quote that many times in Orissa, the recent few cyclones we studied that cyclone Fani, and so there has been a huge uprooting of the large number of trees
And so when the land is denuded, certainly the erosion is going to increase. And the uprooting of tree may take in few hours, but restoring that forest ecosystems may take years. And in between, then there are a number of other cyclonic storms, and that affect this process. So next, please. So we have some examples of vulnerability assessment framework. This is one framework, but here we see that most of the parameters are the physical parameters. Next, please. And this is about risk assessment. So on the left side, the land degradation risk assessment, focusing more on slope risk assessment. So the focus is my message is my message by showing for showing this thing is that we are primarily looking at the physical factors more, whereas the land degradation has to be little seen a little more holistically, considering the ecological dimensions and the social dimensions as well. Social dimensions because the ecological productivity or bioproductivity basically is very important for sustainability of the livelihood support system of the people, their health of their people, and the other way we can see the economic sustainability of the communities. Next, please. So this picture is showing that there are so many nuts and bolts and so many windows of opportunities for integrating climate change adaptation and disaster risk reduction. I think we need to work on a cross mapping, that how through these routes, when we can integrate the land restoration or land the conservation efforts. I think that's very important. Recently, we came up with a manual for integrating wetland-based ecosystem services in district level disaster management planning. So similarly, we can see that how we can integrate into various other planning tools also, because planning is also linked with financial and other kind of resource allocations, and which are very important for having the ground level influence. Next, please. So if we try to list some of the key risk and key interventions, so the first thing I would identify that we need to broaden our understanding of the causes or sources of land degradation. So beyond natural agriculture, urbanization, forest pollution, and the various kind of erosions, including the river erosion and sea erosion. Then I think the tool of ecological risk assessment, that can help us apply the systemic capture systemic linkages. I think that's very important in having prudent the methodology of the land degradation risk assessment. And then how do we look at the incremental risk? So what is the risk at present? Maybe after 10 years, along with while we are accelerating landscape changes or the land use changes, how these things are going to be to take place, and can help us under having the more accurate projections. So our planning can improve. So that's very important, and impact based the risk scenarios. Then economic evaluation. I think that's very important for influencing decisions at the policy level. If we put our the outcomes of our assessment in economic terms, that can help us have a fair bargain with policymakers. Then the fair linkage in terms of risk and vulnerabilities, attribution to hazard and vulnerabilities concerning disasters. So not only drought and floods, other like this is the Delhi and the nearby states, we are under very high heat wave conditions. So how do we look at that? So I think that will really help us, and that can that will set the platform to have entry points into participatory planning, maybe the Gram Panchayat development plans or the district level plans or the city plans. So this is very important, and that will help us promote nature-based solutions also. And finally, how do we look at integrated things? Because so many plans are now going to be put into place: disaster management plans, adaptation plans, health-related plans, development plans, and then talking about land degradation. So how do we look at the roles and responsibilities of various actors, institutions, and agents also, including communities? Next.
So this is a glimpse of the first session of the UNCCD COP14 that we had organized on drought and desertification. So focus that how land degradation is contributing to increasing drought uncertainties and drought intensity in India and other countries of South Asia. So just a glimpse. This report is also available on our website, NID website, and on the research data. So next, please. So, final message that we need to expand the understanding. There are so many new contributors to land degradation, and there's so many strategic opportunities are also upcoming. For example, whatever we discussed under the G20 framework on disaster management, as well as environment, climate change, and environment, forest, and climate change. So, several policy initiatives are there that provide us a very good platform to undertake initiative. But how do we ensure that the national level and global level policies have the local footprints more efficiently? So there, in fact, we have to work with the communities more efficiently. Thank you. So I think with this, I'm sure that today it will be a good learning for me also. We have the other experts. They will be talking about sharing their case studies also. So best wishes for the panel discussion. Thank you. Thank you so much, Anil Kumar ji. If we have questions from the audience, we'll come back to you later. But thank you for that, really insightful look, especially into how do we think about assessing vulnerability when it comes to land degradation. So with that, we'll move on to the next section, which is our webinar. So we have, first I can introduce our moderator, who is Dr. Shalini Dhyani. She is having some internet issues, so if you have any issues, we'll just jump in for the panel discussion. But just to give her introduction, she is the principal scientist at CSIR National Environment Engineering Institute, Research Institute in India, and a visiting scientist at this Center for International Forestry Research in Indonesia and Khazar University in Azerbaijan. She's Asia Vice Chair and Steering Committee member on the Commission on Ecosystems Management of IUCN and Associate at UNESCO, the World Academy of Sciences. Shalini works on interlinkages between socio-ecological systems with a focus on ecosystem health assessments and nature-based solutions. She has been the lead author of 2 assessments by the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, and is also involved as the lead author for the upcoming Springshell assessment by International Center for Integrated Mountain Development in Nepal. She's also working on another on forest resilience by the International Union of Forest Research Organizations. हमारे पैनल में 4 जन हैं 3 अलग संस्थाओं से। पहले सपना कुमारी और सरबोधनी हेब्रोम झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन कर रहे हैं। सपना जी और सरबोधनी जी दोनों सिनी या कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स टाटा ट्रस्ट के लखपति किसान के प्रोग्राम में शामिल है। सपना जी जागरूक महिला फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की प्रेसिडेंट है और सरबोधनी जी एक बोर्ड मेंबर है। हमारा दूसरा पैनलिस्ट संतोष कुमार उत्तर प्रदेश के जलौन डिस्ट्रिक्ट से है और परमार्थ समाज सेवी संस्था के साथ लगभग 30 साल से काम कर रहे हैं। संतोष जी वाटरशेड डेवलपमेंट, जैविक खेती, महिलाओं की पानी का अधिकार आदि में जुड़े हैं। और हमारी आखिरी पैनलिस्ट नंदा काले महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से है। नंदा ताई भी लगभग 30 साल से वाटर के साथ जुड़ी है और मसवंडी गांव की महिला समिति में बहुत एक्टिव सदस्य है। उन्होंने वाटरशेड डेवलपमेंट और महिला विकास पे खूब काम किया है। So with that, I'll pass it over to Dr. Dhyani to kick off. शालिनी जी आप शुरू कीजिए। थैंक यू ईशा एंड आप सभी का स्वागत है। आप जैसा कि ईशा ने बताया कि हमारे सम्मानित पैनलिस्ट अभी जुड़ चुके हैं और एक बहुत खास मौका है आज का, जो वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट को रोकने का जो एक दिन है, जो हम साल में 17 जून को मनाते हैं। पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि अब ये समस्या किसी एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, ये लगभग हर गांव में फेस होने वाली समस्या है। और अनिल जी ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है कि पूरा देश कैसे इससे जूझ रहा है। अभी ये बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि डेजर्टिफिकेशन का जो इश्यू है, स्पेशली लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का क्षरण, ये समस्या जो है उसमें अगर हम देखें ग्लोबली
तो इंडिया वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स है जहाँ पर ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आप सभी लोग जहाँ से भी जुड़ रहे हैं, संतोष जी बुंदेलखंड से जुड़ रहे हैं जहाँ पानी की समस्या हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ी समस्या रही है। नंदा काले जी मराठवाड़ा से जुड़ रही हैं हमारे साथ, और हमको पता है कि मराठवाड़ा में भी पानी की समस्या है। सपना कुमारी जी और सरबोधनी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं झारखंड से, जहाँ पर ये लैंड डिग्रेडेशन का इशू है। तो अभी ये कहना मुश्किल नहीं है कि अभी आने वाले समय में ये समस्या और भी बढ़ेगी। तो जितने ज्यादा सस्टेनेबल इकोसिस्टम बेस्ड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो उतना ही अच्छा होगा आने वाली पीढ़ियों के साथ भी। जैसा कि हम सभी को पता है कि आप सभी ग्रास रूट लीडर्स हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कम्युनिटी को मोबिलाइज कर रहे हैं, मैं कहूंगी कि वॉरियर और लीडर्स हैं हमारे लिए और प्रेरणा का स्रोत हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप सभी ये कार्य कर रहे हैं और ये आसान नहीं है। स्पेशली जब मैं आप सपना कुमारी जी, सरबोधनी जी और नंदा काले ताई को देखती हूँ कि आज महिला आज के समाज में गांव में ऐसे काम कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये बहुत बड़े परिवर्तन का द्योतक है कि आने वाला भविष्य जो है उसको जरूर देखेगा। तो इसी के साथ हम अपना जो आज का जो एक पैनल डिस्कशन है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं नंदा ताई के पास जाना चाहूंगी कि जैसे कि आपको पता है कि वो लैंड डिग्रेडेशन और ड्राउट के जो सूखा है उनके एरिया में उस पर काम करती हैं, और जो उनके इंटरवेंशन है वो वाटर के इंटरवेंशन से भी बहुत प्रेरित हैं, जिसमें वाटरशेड डेवलपमेंट हो गया, पौधे लगाना हो गया, मल्चिंग हो गया, नेचुरल जिसको हम क्लाइमेट अडेप्टिव और इसको क्लाइमेट रिजिलियंट कृषि भी बोलते हैं, उस पर भी वो काम कर रही हैं। साथ ही साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों को भी संभालने का, मैनेज करने का, कंजर्व और स्टोर करने का भी कार्यक्रम कर रही हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि आप जो ये आपकी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो महिलाएं हैं, वो किस तरीके से इस कार्यक्रम को कर रही हैं, क्योंकि मराठवाड़ा ऐसा एरिया है जहाँ पे सूखा बहुत लंबे टाइम तक रहा है और अभी भी हम देख रहे हैं कि हर साल समस्या से जूझ रहा है। हीट वेव्स बहुत बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ये पानी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। तो आपको कैसे लगता है कि आपका ये जो अब आप अपने बारे में बताएं, तो आप ये भी बताएं कि कैसे इन सब की शुरुआत हुई मराठवाड़ा में, कैसे आपको लगा कि मुझे इसमें भागीदार बनना है, मुझे लोगों को प्रेरित करना है, अवेयरनेस करनी है और लोगों को इन्वॉल्व करके एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करना है। तो नंदा जी, आपकी तरफ मैं आपसे पूछना चाहूंगी और जानना चाहूंगी। नमस्ते, मेरा नाम नंदा बाळकृष्ण काळे, मैं महिला समिति में उपाध्यक्ष हूँ और मेरा गांव का नाम मसवंडी, तालुका संगमनेर, जिला अहमदनगर। ये एक सह्याद्री के कुशी में हमारा बैठा हुआ एक छोटा सा गांव है, मसवंडी, तालुका संगमनेर, जिला अहमदनगर। तो ये प्रोग्राम हमारे यहाँ 94 में चालू हो गया। तो शुरू से हमको ये कोई मालूम भी नहीं था और हमारे गांव में पानी भी नहीं था, खाली बाजरे का पिक ही निकलता था। पीने के लिए पानी तो हमको कुएं से लाना पड़ता, 2-2 बर्तन लेकर हमको पानी लाना पड़ता था। लेकिन जब ये 94 में जब ये कृषि दूत हमारे फादर बाकर साहब है, उन्होंने हमको ये बताया ये पाणलोट क्षेत्र विकास प्रोग्राम क्या है, ये किस लिए है, कैसा करना है, ये हमको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया। और उसके बाद जो हमारी वाटर संस्था है उन्होंने देखे हमारे 5 बरस हमारे गांव में काम किया, उन्होंने ही बताया ये प्रोग्राम कैसा करना है। उन्होंने पहले हमको ऐसे बताया कि ये जो विकास के पाणलोट क्षेत्र विकास के जो आरटी है, तो उसमें श्रमदान है, कुराड़बंदी है, नशाबंदी है, चराईबंदी है, ये पहले तुमको आरटी मान्य करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ऐसा भी हमारे सब हमारे जो ग्रामस्थ है, हमारे जो महिला है, उसको धीरे धीरे लोगों ने, जो हमारी संस्था ने वहाँ 5 बरस काम किया, उसने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया। उसके बाद हमारे जो ग्रामस्थ है, हमारी जो महिला है, ये सब इकट्ठा बैठकर सभी को बताया ये श्रमदान किस लिए करना है, आपका गांव है, आपका कुटुंब है, सब आपके ही लोग है, तो इसलिए श्रमदान तो करना चाहिए। लेकिन कोई लोग आए, लेकिन कोई लोग नहीं आए, तो उसके लिए हमने 40 रुपए खाली दंड रखा। और ऐसे धीरे धीरे सभी इकट्ठा, हम क्यों दंड देंगे, हम काम पर आ जाएंगे। तो ऐसे इस तरह से हमारा श्रमदान चालू हो गया। उसके बाद जो नशाबंदी है, तो ये नशाबंदी पूरे पहले तो भट्टी थी वहां हमारे गांव पे, लेकिन वो भी हमारे गांव वाले ने बंद की। तो आज भी हमारे गांव में नशाबंदी भी है। और चराई बंदी बोले तो कोई भी जानवर चरने के लिए जाता नहीं,
जो गवत काटकर अपने घर में लाकर रखते हैं और वो गाय में खिलाते हैं। तो ऐसे चराईबंदी, अब चराईबंदी जब जानवर एक गया तो उसके लिए भी 500 रुपए गांव हमारा दंड लेती है। तो ऐसे आज भी इतने 25 बरस हो गए, लेकिन आज भी हमारे गांव में ये आटे अभी भी मान्य है। में जो श्रमदान है, जो कुराडबंदी, कोई महिला लकड़ी लाने गई तो उसके लिए भी 500 रुपए दंड है। तो आज भी हमारे यहाँ ये चराईबंदी, ये जो कुराडबंदी है, तो ये भी आज भी हमारे गांव में ये चालू है। उसके बाद श्रमदान हो गया, रोड का काम हो गया, जो नाला बंद है, ये केटी बंदा रहे, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद हमारे सब महिला इकट्ठा आने लगी। उसके बाद हमारा समूह चालू 96 में खाली हमारा श्रम साफल्य ये समूह चालू हो गया। उसके बाद खाली हमको 20 रुपए से चालू गया और उसके बाद धीरे धीरे हमारे समूह चालू हो गया। तो 37 हमारे समूह ऐसे चालू गया। उसकी समिति स्थापन हो गई 2000 में। और ये हमारा छोटा सा गांव है, आने जाने की बहुत दिक्कत है, इसलिए हमारे समिति ने क्या किया, उसमें विशेष कर्ज, अति विशेष कर्ज, महिलाओं के नाम पर गैस एजेंसी, ग्राइंडर मशीन, ये हमने छोटा छोटा व्यवसाय, एक बड़ा काम नहीं किया, लेकिन जो गांव में जो आड़े अड़चन है उसके लिए हमने सब मिलजुल कर ये काम किया। सब महिलाओं ने मीटिंग, एक श्रमदान बनाकर एक ऑफिस तैयार किया। उसमें हमारा जो कामकाज चलता है, बहुत बड़ा ऑफिस हो गया। हमको तो कोई जगह, लेकिन हमने ग्राम पंचायत को जगह मांगी। उसके बाद हमारे सब महिलाओं ने अपने पाँव पर खड़ी कर दी, उसको नाम दिया महिला श्रमदान वास्तु। तो आज वो ऑफिस में 1500 तक हमारी यहाँ प्रशिक्षण के लिए सब महिला आकर यहाँ प्रशिक्षण ले गए। और वो हमको पूछते हैं कि तुम ये काम कैसा किया, हमको सब पूछते हैं। हम 2-2, 3-3 घंटे उसको बताते हैं, ये शुरू गांव कैसा था, कैसा हो गया, अभी कैसा है, ये सब हम बताते हैं। तो ऐसे मिलजुल कर हमारे सब महिलाओं ने एक श्रमदान बनाकर एक ऑफिस तैयार किया। उसमें जो टेबल कुर्सी लगता है वो सब रखा। उसके बाद धीरे धीरे विशेष कर्ज है, कोई महिला डिलीवरी चली गई, उसके पास जब पैसा नहीं तो किसके पास हाथ फैलेंगी, तो इसलिए हमारे समिति खुद उसको हॉस्पिटल में जाकर 30,000 तक रकम उसके साथ, पेशेंट के साथ कोई हो तो उसको सुपर्द किया जाता है। लेकिन पूछता नहीं कि बाबा तुम ये पैसा कब वापस करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब जरूरत है तो किसी के पास हमारी महिलाओं को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे विशेष कर्ज है। अति विशेष में क्या होता है, कोई महिला गरीब हो, वो पैसा नहीं दे सकी, तो उसके लिए 6 महीने हमारी समिति ब्याज लेते नहीं। और हमने खाली 50 पैसा इतनी ही ब्याज रखा है। लेकिन किया है ऐसा, महीने में एक बार मेरी जो बचत है, जो हमने कर्ज लिया है उसका ब्याज, तो ऐसा ये पैसा ऑफिस में आकर जमा करना पड़ता है। और जो हमारे समूह देखने वाले हैं, ये हमारे संगठक दिलीप सातकर जी है, तो ये सब कारभार संभालते हैं। और नंदाताई, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। उसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो पॉइंट आपने रेज किया था नशाबंदी का, नशाबंदी का जो एक कनेक्ट है लैंड डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज के साथ, वो बहुत आपने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महिलाओं के जो उनको स्वावलंबी बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो धन्यवाद उस विषय को भी हाईलाइट करने के लिए। इन्फोर्समेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। गवर्नेंस सिस्टम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम क्या करते हैं कि जब तक डॉक्टर ध्यानी वापस आ जाते हैं, नंदाताई शायद हमें थोड़ा बता सकते हो कि आपकी महिला समिति ने पर्यावरण के, जैसे आप कह रहे थे पौधारोपण वगैरह आपने किया था, तो जो आपको आपके जगह में ये सब इंटरवेंशंस करने के बाद महिला की स्थिति कैसे बदल गई थी? यही बात तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी तरह से हो गई। जो खेती में काम कर रहे हैं ना, तो मजदूरी देते भी नहीं, लेते भी नहीं, सावड़ के रूप से काम करती है खेती में। मैं तुम्हारे खेती में जाऊंगी और वो मेरी खेती में आ जाएंगे। तो ऐसा बहुत ऐसा बदलाव होगा। जो जो काम है वो
पूरा ऐसे ही काम करते हैं। और जो हमारे बच्चे लोग हैं, ये भी जैसे हमने पेड़ लगाया है वैसे हमारे बच्चे भी बरस में एक बार जब बारिश पड़ने वाली है तो छुट्टी के दिन जो हमारे बच्चे लोग बाहर जॉब के लिए है, लेकिन वो खुद सब मिलजुल कर गांव में आते हैं और पेड़ का अच्छी तरह से काम करते हैं और ठिबक सिंचन से पानी भी देते हैं। तो ऐसे जैसे हमने काम किया है वैसे हमारे बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। आपने हमें ये भी बात बताया था कि जब भी आपको लगा था कि हमें बहुत जरूरत है लकड़ी का, पर हम पेड़ नहीं काटना चाहते, तो ये मतलब ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन जैसे आया था, क्योंकि आपको पता था कि ये पर्यावरण के लिए ठीक ठीक नहीं है, पर आपकी जरूरत पड़ रही थी। तो समिति मिलजुल के उस प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सामना किया था? हाँ, तो ऐसे हमने मीटिंग में एक विषय लिया, तो ये जो लकड़ी नहीं तोड़ना है तो खाना किस पर पकाएंगे, तो इसलिए सभी ने मिलजुल कर गैस एजेंसी का काम चालू किया और सभी के आज कुटुंब में सब महिलाओं के नाम पर भी हमारे गैस, सभी के घर में गैस है। बहुत अच्छा। तो नंदाताई, हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। संतोष जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप अपना परिचय दे सकते हो और परमार्थ के साथ आपने क्या क्या काम किया है उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? जी नमस्ते। और मेरा नाम है संतोष है और मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग के जनपद जालौन विकास खंड रामपुरा में सघन रूप से वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ परमार्थ समाज सेवी संस्थान के साथ। पहले मैं गांव स्तर पे एक वाटर सेट जो कमेटी थी उस पे मैंने काम किया, फिर उस पे सीखा और जिस तरह से मैंने अपने गांव में काम किया तो मुझे लगा कि और बड़े से व्यापक एरिया में इस काम को किया जाए। तो जो चंबल वाला जो इलाका था उस इलाके में हम लोगों ने शुरू किया, क्योंकि वो पूरा सा समन शाही वर्षा आधारित वहाँ तो जमीन थी और पेयजल वहाँ की समस्या बहुत थी कि जो वाटर लेवल था, एक छोटी बेड़ गांव है वहाँ के 135 से पे नीचे रस्सी लगती थी पानी भरने के लिए। तो एक तरफ जानवर लगता था, बैल जिसको कहते हैं, और एक तरफ पुरुष, और तब रस्सी को ले जाते थे पानी को निकालते थे। उस पर काफी यहाँ लड़ाई झगड़े भी होते थे आपस में, उनका एक मन मुटाव भी रहता था। ये सारी समस्याओं को हम लोगों ने देखा और पलायन भी बहुत था और डाकू समस्या भी यहाँ थी बहुत। ये सारी चीजों को देखते हुए और बड़े हम लोगों ने हिम्मत के साथ वहाँ पर काम किया। पहले शुरुआत पे हमने वहाँ पे बेस लाइन एक सर्वे किया, फिर पीआरए के माध्यम से भी हमने लोगों के माध्यम से पूरा उस गांव का एक आंकड़ा निकाला, फिर उस पर हम लोगों ने समुदाय के साथ मिलकर वहाँ पूरा सा एक विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के पास जब हम लोग को वहाँ पे जो समस्याएं, पेयजल, जो जंगली जानवर था उनकी समस्याएं थी, महिलाओं की बद से बहुत बदतर उस स्थिति थी, वहाँ पर कोई भी 5 पास लड़की नहीं थी उस एरिया में। और 9 गांव को जब हमने सर्वे किया था तो 9 बहनों की डिलीवरी के समय मौत हो गई थी। तो वो जब आंकड़ा हमने शासन और प्रशासन के लोगों को वहाँ रखा तो पूरा शासन प्रशासन के लोग उस आंकड़े को देखकर उसमें पड़ गए। तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने पूरी इन समस्याओं को देखते हुए पानी और सैनिटेशन और लाइवलीहुड के लिए हम लोगों ने काम किया। शुरुआत पे हम लोगों ने गांव पे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन छोटे से महिलाओं का एक संगठन बनाया, क्योंकि जो बहनें थी वो पुरुषों के साथ नहीं बैठ सकती थी, अपनी बात को नहीं रख सकती थी और ना हमारी बात को सुन सकती थी, जो उनके अंदर जो सवाल और जवाब थे वो नहीं रख सकते थे। तो महिला मंडल में हम लोगों ने बेसिक तौर से उनको वहाँ पर तैयार किया कि जिससे वो पुरुषों के सामने भी बैठ सके, वो अपनी बात को रख सकें। जब वो बहनें तैयार हो गई, वहाँ किशोरी मंडल का भी हम लोगों ने गठन किया और ये यूथ थे तो उनका युवा मंडल का भी गठन किया। फिर हमने एक गांव स्तर पर एक पानी पंचायत का गठन किया जिसमें बहनें भी थी, यूथ भी थे और किशोरियाँ भी थी। वो जल सहेली उन पानी पंचायत के माध्यम से वहाँ के गाँव के कैडरों को तैयार किया और उन कैडरों को हम लोगों ने ट्रेनिंग के द्वारा, एक्सपोजर के द्वारा और जो हम लोगों ने मॉडल तैयार किए थे उन मॉडलों को भी उनको दिखा के उस तरह से जब गांव में हम लोगों ने काम शुरू किया तो लोगों के उसमें आया। इसके बाद फिर हम लोगों ने गांव में एक पूरी सी प्लानिंग की। प्लानिंग में हम लोगों ने पंचायत को भी जोड़ा, क्योंकि हमने कहा कि बिना पंचायत
और जितने भी लैंड डिपार्टमेंट के लोग थे, सारे लोगों को जोड़ के हमने उस गांव की एक डीपली प्लानिंग की। जब वो हम लोगों ने डीपली प्लानिंग की, जो वहाँ की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को भी हम लोगों ने प्राथमिकीकरण किया कि पहले कौन सी ऐसी समस्या है जो हम यहाँ पर शुरुआत करें। फिर इसके साथ हम लोगों ने वहाँ पे धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। बहनें जुड़ी, बहनों ने जो पानी का ज़्यादा उपयोग करती थी उस पर भी हम लोगों ने काम किया कि जो पानी है तो उस पानी को भी विवेकपूर्ण तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमारा काम भी चल जाए और उस पानी की हमारी बचत भी हो जाए। उसके लिए फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे काम किया। तो कम्युनिटी सामुदायिक पोषण वाटिका का हमने वहाँ पे लोगों के साथ बहनों ने मिलकर उसको लगाया, क्योंकि बहनों की जो स्वास्थ्य की समस्या थी, जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो महिलाओं का एक हम लोगों ने जांच कराई थी, उस पर बहनों का बहुत कम था और डिलीवरी के समय उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि यहाँ उस समय की था कि बहनें खाना तो बना देती थी, लेकिन जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो भैया लोग पहले खाना खाते थे, बच्चे खा लेते थे, बाद में अगर सब्जी बच गई तो बहनें खा लेती थी, नहीं तो उनको सब्जी भी नहीं मिलती थी। नमक या प्याज को उन्होंने काट के उस तरह से अपना खाना, क्योंकि अपने लिए वो आलस या वो मतलब जो भी, तो उस तरह से स्थिति थी वहाँ पर। फिर हम लोगों ने जब काम शुरू किया, जब वहाँ पे हम लोगों ने पूरा सा एक प्लान बनाया, प्लान के साथ फिर जब हम लोगों ने ये प्लान था कि हर खेत पर मेड़, और जहाँ नाला है तो वहाँ पे हम लोगों ने चेक डैम का निर्माण किया, गेबियन चेक डैम का निर्माण किया, गली पिलक का भी हमने निर्माण किया। मतलब ये था कि भले हम एक वाटर सेट पे जहाँ पे हम लोग शुरू करें, लेकिन ये था कि चोटी से लेकर एड़ी तक पूरा मैनेजमेंट वहाँ पर हम लोग करें। उस तरह से हमने कुछ वहाँ पर मॉडल खड़े किए और जल सहेली का भी एक मॉडल खड़ा किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ये छोटे से एरिया से परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो ये सरकार के साथ भी हम लोगों ने इसको बात की। तो जो मध्य प्रदेश में जल सखी के नाम से वहाँ पर रखा गया, और हमारे उत्तर प्रदेश में भी जल सहेली के नाम से, उस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हर पंचायत में उनको वहाँ पर रखा गया कि, और उनके साथ मिलकर जो भी पंचायत है या सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो मिलकर उस गांव को पानीदार बनाने के लिए, और पानी का बरसात का जो पानी वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रिचार्ज हो, उसके लिए हम लोगों ने रिचार्ज पेट और सब्जियां जो थी उन सब्जियों को भी हम लोगों ने लगाया। और सब्जी लगाने का ये था कि जो समुदाय के जो पोषण वाटिका है पूरी जैविक थी। पहले हमने उन लोगों को ट्रेनिंग दी कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर को हमको इसमें यूज नहीं करना है, तो फिर हम लोगों ने कहा कि प्राकृतिक तरीके से कैसे हम खेती करेंगे, जैविक कैसा हमारा ये उत्पाद होगा। अमृत पानी, जीवामृत, अमृत खाद, इस तरह से सारी चीज़ों को हम लोगों ने, हरी खाद, ढेंचा और सन, उस तरह से पूरा सा एक हम लोगों ने तैयार वहाँ पर किया। उस तरह से हम लोगों ने सब्जी का उत्पादन किया, जिससे सब्जी से बहनों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई, क्योंकि एक तो उनको खाने को मिली, तो स्वास्थ्य में भी काफ़ी वहाँ पर बहनों का एक सुधार हुआ है, और उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, NRLM के द्वारा भी हम लोगों ने बकरी पालन और उस तरह से लीज पर खेती लेकर उन लोगों ने वहाँ पे सब्जी जैविक तरीके से शुरू किया। और इस समय तब बहनें जो हैं अब खुद अपने आप में अमृत पानी, जीवामृत, इस तरह से जो जैविक खादें हैं इनको वहाँ पर लगा रही हैं और पूरा सा कर रही हैं। इसके बाद जब हमने ये पूरा सा देखा, तो पंचायत के साथ भी हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, और ट्रेनिंग के साथ साथ जो हमारी जल सहेलियाँ थी वो पंचायत में प्रधान के रूप में बनी, वार्ड मेंबर के रूप में बनी, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में बनी। मतलब पूरी जगह नहीं बनी, लेकिन कुछ जगह जहाँ बनी तो उस जगह जो DPAP का जो प्लानिंग होती है, तो उन्होंने पूरा सा वहाँ पर वाटर साइड का 80% 70% तक का उस प्लानिंग में डाला है। क्योंकि उनकी यहाँ पर हमारे बुंदेलखंड की मूल समस्या ये है, क्योंकि यहाँ पर 5-5 नदियां हैं, इतना ढलान है, ढालू है, तो जो मिट्टी का जो भूमि कटाव हो रहा है वो बहुत तेजी के साथ यहाँ हो रहा था। तो उन्होंने पूरा सा मेड़बंदी, गली पिलक
पूरा से जब उन्होंने देखा कि ढलान में किस तरह से, और हमने भी अपने सीखने के लिए एप्रो के जो टेक्निकल लोग थे उनका भी हमने सहयोग लिया, गांव के जो कैडर लोग थे उनको भी हमने ट्रेनिंग दिलवाई, और उस तरह से फिर हम लोगों ने पूरा सा एक शुरू किया। और जब हम लोगों ने 9 गांव से शुरू किया और फिर उस इलाके में 50 गांव, फिर पूरे जिले में हमने कहा कि सघन रूप से तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो हमने फिर सरकारी जो मशीनरी, जो सरकार के जो लोग थे उनके वहां पर हमने विजिट कराई, उनको हमने दिखाया कि आप इसको देखिएगा, हम लोग तो नहीं इतना ज्यादा व्यापक रूप से कर सकते। तो उस तरह से हर गांव में, हर ब्लॉक में, क्योंकि यहाँ की जो बच्चियां थी वो दूसरी जगह उनकी शादी हो गई, जो हमारी किशोरी मंडल में तैयार हुई, उनके अंदर भी एक अंदर से वो थी, तो उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे संगठन के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ आइएगा, बहन हमारे यहाँ आ जाइएगा। इस तरह से पूरे जैसे जिले में, और इस समय हम लोग पूरे बुंदेलखंड में इस तरह के जो चंदेलकालीन तालाब हैं उनका भी हम लोगों ने जीर्णोद्धार कराया, और वृक्षारोपण। जी, यहाँ पे एक बात आपको पूछना चाहती हूँ। तो आपने बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में बात किया है, जैसे वृक्षारोपण, वाटरशेड डेवलपमेंट, और ये भी आपने दिखाया है कि ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक अ, अ, जो चीजें हैं उनकी कमी से हमारे समाज पे क्या असर पड़ती है। जैसे पलायन बहुत होता था, महिला की स्वास्थ्य ठीक नहीं होती थी, हीमोग्लोबिन कम होती थी। तो ये सारी इंटरलिंकेजेस काफी इंटरेस्टिंग है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने कहा है, ये सब इंटरलिंकेजेस, ये सब काम जो हुआ है, आपने स्केल के बारे में भी बात किया है, जैसे एक छोटा सा गांव से लेके पूरा जिला आपने कवर किया है। तो अभी अभी आगे जाके आपका काम जो आप देखते हो, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम अभी एक नए जमाने में है, जलवायु परिवर्तन के जमाने में, और इसका भी असर आपके समाज और आपके समुदाय पे पड़ती होगी। तो आपने खुद के कौन कौन से सुझाव या समाधान ढूंढे हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, और आप इसको अपने प्रोग्राम में अभी कैसे आगे लेना चाहते हो? और मुझे लगता है कि डॉक्टर ध्यानी वापस आ गई है, तो इसके बाद मैं थोड़ा पीछे हो जाऊंगी और डॉक्टर ध्यानी आप वापस आ सकते हैं। तो संतोष जी प्लीज हमें बताइए। जी, इसके समाधान के लिए जो हम लोगों ने जो काम शुरू किया है, एक तो जो प्राकृतिक खेती है उसको हमने शुरू किया है। दूसरा यह है कि जो सिंचाई की जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों में हमने वहाँ पे जागरूक किया है, और सरकार के साथ उनको स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप इरिगेशन, और इसके बाद हम लोगों ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक गठन किया है। जो हमारे वो संगठन के लोग थे, जो बहनें थीं, जो पुरुष थे, तो जो हमारे यहाँ पर पराली वाला जो सब बहुत मात्रा में जलाया जाता था, जिसका बहुत ज़्यादा एक प्रदूषण, और जो मिट्टी थी उसके जो हमारे जो मित्र जीवाणु थे वो खत्म हो रहे थे, और वो सारे से उनको यंत्र वहीं पर उपलब्ध कराए, जिससे ये पराली जो जलाने वाला सिस्टम था वो यहाँ पर काफी कम हो गया है। और ये है कि जिस तरह से अभी 2 जगह 3 जगह ये मशीनी फार्म मशीनरी वाला जो सिस्टम चलाया है, इसको हम सोच रहे हैं कि हर जगह, हर ब्लॉक में ये हो जाए, जिससे जो हमारे किसानों की यंत्रों की जरूरत है तो वो पूरी हो जाए, जिससे जो पराली जलाने वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाए। तीसरा ये है कि जो हम लोग जैविक खाद तैयार कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जैविक खादों का प्रयोग मतलब किया जाए। और तीसरा ये है कि पहले यहाँ पर लकड़ी से जो खाना बनता था, अब आज ये है कि हर घर में गैस चूल्हा है, और उस तरह से हम लोगों ने फार्म जनसंख्या, जो गांव के जल सहेलियाँ थी, हर गांव में उन्होंने अपने, कोई भी नहीं वहाँ बचा जिसके पास गैस सिलेंडर हो, सारे लोग गैस सिलेंडर पे खाना बनाते हैं। और इसके बाद जो वहाँ पर रूरल से लोगों को यहाँ पे रस्सी बनाने का काम है, वहाँ पे घास बहुत होती थी जंगल में, उस घास से वो लोग डाब की रस्सी बनाते हैं, और डाब की रस्सी से उनकी आजीविका में काफ़ी मतलब बदलाव हुआ, क्योंकि उसकी मार्केटिंग के लिए मतलब बाहर जाने लगा है। और जो सब्जी उत्पादन कर रहे हैं हम लोग, तो उसका जैविक तरीके से तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग में जो रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिल रहा है।
क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर जो लोग डालते हैं उसका उत्पादन ज्यादा होता है और इसका भी थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन ये है कि लागत कम आ रही है, तो उस एवरेज से जो हमारे बहनें हैं वो खुश हैं कि लागत कम आ रही है और उसका मुनाफा, अगर केमिकल के लोग जो खेती कर रहे हैं उससे मुनाफा हमारा कम नहीं है। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद संतोष जी, आपने ये जो एक पूरा डिटेल में हमको एक पर्सपेक्टिव दिया अपने एरिया का। अब मैं चाहूंगी कि सपना कुमारी जी जो और सरबोधनी हेब्रोन जी जो हमारे साथ जुड़ रही हैं झारखंड से, वो हमें ये बताएं। और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हम सभी को जानना चाहिए कि सोशल डायनेमिक्स और जो उनकी पर्यावरणीय जो उन्होंने चॉइसेस की हैं, जो वो उसमें से इनिशियली क्या चाहते थे कि बैल वगैरह नहीं रखना चाहते थे, तो ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने बहुत लंबे टाइम से ये जब देखा तो उनको पता चला कि हम ब्लाइंडली किसी चीज को नहीं फॉलो कर सकते, कि हम एक तरीके का जो एग्रीकल्चर है उसको फॉलो करें, क्योंकि उसके भी अपने दुष्प्रभाव हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि ये लखपति किसान योजना क्या थी और इसमें कैसे आपके अपने प्रयोगों से आपको समझ में आया कि लखपति बनना ही जरूरी नहीं है, बल्कि हमको ये भी समझना जरूरी है कि जब हम लखपति बने तो उसके साथ साथ हमारा आसपास का वातावरण, हमारी भूमि, हमारा पानी भी हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। तो मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आपके इस बारे में क्या सोच थी, क्या मोटिवेशन था जिससे आप प्रेरित होके लखपति किसान और उसके आगे की आपने ये जर्नी की है। मेरा नाम सपना है और मैं जागरूक महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जामा की एक बीओडी हूँ और मैं दुमका के जामा ब्लॉक से हूँ। और मेरे साथ है हमारी कंपनी की प्रेसिडेंट दीदी सरबोधनी किस्कू। आप बोलिए। सभी को जोहार, मेरा नाम है सरबोधनी हेम्ब्रम, जागरूक महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का मैं बीओडी दीदी हूँ और मैं दुमका जिला जामा प्रखंड के घोड़ीबाग गांव में रहती हूँ। और मेरा गांव में कुल 121 परिवार है और ये लाखपति किसान प्रोजेक्ट में 70 परिवार के साथ काम कर रहा है। 78 परिवार में से 21 परिवार मेरा लाखपति किसान बने हैं। और मैं 2015 से ये लाखपति किसान प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। और लाखपति किसान प्रोजेक्ट हमारे जमा प्रखंड के 12 पंचायत में काम कर रहा है। अब 12 पंचायत में से 111 गांव में हम लोग काम करते हैं और 111 गांव में से हम लोग 7,800 परिवार के साथ काम करते हैं। मैं एक बीओडी होने के नाते हमारे यहाँ ग्राम संगठन बैठा, ऑफिस कार्यालय बैठा और प्रत्यक्ष कम्युनिटी खरीदारी बैठक में भाग लेते हैं, जिसमें से हम लोग पिछले साल धान इनपुट और आउटपुट में 1.5 करोड़ का बिजनेस किए हैं और बकरी आउटपुट में हम लोग 32 लाख का बिजनेस किए हैं। इसमें से लाखपति किसान प्रोजेक्ट में से मैं एक लाखपति दीदी हूँ, जिसे हमने 4 एकड़ में धान की खेती किया था। इसमें से 40,000 मेरा पैसा हुआ है और 30 डिसमिल हमने सब्जी का खेती किया था और उसमें से मेरा 61,000 रुपया कमाई है। और लाख ही मैंने 12 पेड़ में लगाया था, खेती किया था, उसमें से मेरा 10,000 रुपया हुआ है। तो इस तरह मेरा लाखपति किसान बना। तो जैसे कि दीदी बताई कि हम लोग का लाखपति किसान जो प्रोग्राम है और उसमें हम लोग मुख्य रूप से 5 काम करते हैं। जैसे कि पहला है खेती, दूसरा है बकरी पालन, लाह पालन, उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया है मुर्गी पालन और मत्स्य पालन। तो हम लोग जो है इनके साथ साथ हम लोग पर्यावरण को देखते हुए भी अभी जिस टाइप से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसको देखते हुए हम लोग जिस तरह से पानी की समस्या आ रही है और जो ईंधन का जो अभी बहुत ज्यादा क्षरण हो रहा है तो उसको देखते हुए हम लोगों ने अब जो डीजल या पेट्रोल से जो मशीनें चलती थी जिससे हम लोग सिंचाई करते थे उसको मतलब उसको छोड़ के हम लोग किसानों को प्रेरित करते हैं कि अभी जो है हम लोग सौर ऊर्जा से अपना सिंचाई करें।
सौर ऊर्जा में खेती से मतलब जब वो सिंचाई करते हैं उससे हम लोग का ये लाभ होता है कि जो हम लोगों का जो ईंधन में जो खर्च आता था वो तो हम लोग बच जाते हैं, और दूसरा है कि पॉल्यूशन से हम लोग भी बच जाते हैं। उसके बाद दूसरा, हम लोग पानी की जो कमी देखते आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग किसानों को प्रेरित करते हैं कि वो ड्रिप संरचना लगाए। उसमें हम लोग बहुत कम पानी में जो है बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं। उसके बाद जो है साथ ही हम लोग अगर थोड़ा सा संख्या बता देते हैं कि सोलर MLI जो है अभी तक हम लोगों ने 104 लगाए हैं अपना जिस हाउस होल्ड के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें जो है लगभग 843 परिवार जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने ड्रीप अभी तक 228 लगाए हैं, जिसमें जो है 246 परिवार जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने खेती रक्षक का संरचना लगाया है, जैसे कि हम लोग जो पौधा लगाते हैं उसमें बहुत ज्यादा बाहरी जो जीव जंतु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो अटैक करते हैं। तो हम लोग जब हम लोग अटैक होता है तो हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम लोगों के पास स्वस्थ पौधा रहता है तो हम लोगों को कीटनाशकों का भी प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग पौधा को खेती रक्षक के अंदर लगाते हैं। और उसके बाद हम लोग जो पौधा तैयार खुले में पौधा ना तैयार करके हम लोग जो है पॉली हाउस नर्सरी में तैयार करते हैं, ताकि जो छोटा, अगर हम लोग कोई भी अगर बच्चा का उदाहरण लेते हैं, अगर छोटा बच्चा जो है बचपन से ही बीमार रहता है तो वो बड़ा भी जब होता है तो बीमार ही रहता है। तो उसी तरह हम लोग जो है पौधे को मतलब छोटे से हम लोग स्वस्थ रखते हैं, इसलिए हम लोग पॉली हाउस नर्सरी में उसका मतलब तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग किसानों को देते हैं। साथ साथ हम लोग कुआं कर रहे हैं और तालाब भी हम लोग कर रहे हैं, जिससे वाटर लेवल सही से बना रहे। उसके बाद हम लोग जो है अभी कार्बन क्रेडिट के साथ बात कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को जो है जो पर्यावरण का जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे हम लोगों को मतलब भूमिका हम लोग दिखाए। सपना जी और सरबोतनी जी, जो आपने बताया उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आपने बात की है वो सिस्टम्स का जो अप्रोच रहा है, और इसी लेंस को लेकर कर रहे हैं। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिसमें कार्बन क्रेडिट भी एक था, सोलार भी था, क्लीन एनर्जी के साधन जो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि देखिए, कुछ महिलाओं के, कुछ कम्युनिटी मेंबर्स के लेवल पर जो चेंज आता है ना, वो एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक जो बदलाव आना चाहिए लोगों के बिहेवियर में, कि उनके जो काम करने का तरीका है, उनकी शैली है, उसको बदलने के लिए आपको कैसे लगता है कि ये जो हमारी सामाजिक जरूरतें हैं और हमारी सामाजिक जो हमारा विकास है वो, और उसका जो पर्यावरणीय जो हमारी जो जरूरतें हैं, उनमें क्या संबंध है? और आपको कैसे लगता है कि समाज और पर्यावरण को एक साथ लेकर हम एक विकसित गांव और विकसित समाज का सपना देख सकते हैं? तो आपको अपने इतने सालों के जो आपके अनुभव हैं उसमें आपको कैसा लगता है कि ये सिस्टम थिंकिंग ने आपको और आपके गांव वालों को एक जो आपका बिहेवियर शैली का जो बदलाव है? मेरा सवाल ये था कि आप जो अच्छी काम कर रही हैं और आपको जो लगता है सामाजिक विकास जो है कहीं ना कहीं हमारी पर्यावरणीय को एक साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटे समय का परिवर्तन नहीं है, हमको एक लंबे समय तक लगातार सतत रूप से ऐसे ही एक बिहेवियर के साथ, ऐसे ही अपनी जीवन शैली के साथ आगे चलना पड़ेगा। सोलर 1-2 साल 10 साल के नहीं, आगे की पूरी जनरेशन तक हमको आगे वो करना पड़ेगा। तो ये जो आपका अप्रोच है उससे लोगों की सोच और समझ में कैसे परिवर्तन आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो थोड़ा आप हमें बता पाएंगी? क्योंकि जब तक लोगों को फायदा नहीं दिखता है लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जैसे कि हम सोलर के बारे में आप लोगों को बताए, तो वो हम लोग जो है अभी जैसे बोले कि इतना लोगों के पास सब लोग लगभग अभी 104 सोलर पैनल लगा चुके हैं। तो शुरू में मतलब जब हम लोग शुरू किए थे तो किसानों का पहला सवाल होता था कि हम लोग क्यों लगाएंगे जब हम लोग के पास डीजल से चलने वाला मोटर है, उसके बाद जो मशीनें हैं जो पेट्रोल से चलती है, ठीक है। तो हम लोगों ने उनको समझाया कि देखिए अभी जो आप लोग यूज कर रहे हैं उससे पहला तो पर्यावरण प्रदूषित होता है, दूसरा आने वाला जो ईंधन है वो एक लिमिट है, मतलब अगर हम लोग यूज करते जा रहे हैं तो ऐसा कभी ना कभी समय आएगा
जो मतलब खत्म हो जाएगा। साथ ही उसमें जो है ईंधन जैसे जैसे कम हो रहा है तो उसका जो मतलब प्राइस है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम लोग समझाए। और फिर हम लोगों ने सोलर के बारे में भी बताया कि देखिए इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई ईंधन नहीं लग रहा है, ठीक है। और इससे होगा क्या, हमारा पर्यावरण भी जो है वो प्रदूषित नहीं होगा, उससे भी बचाया जाएगा। तो जब हम लोग शुरू किए थे उस टाइम तो हम लोगों को बहुत ज्यादा समझाना पड़ा था। एक दो जगह लगा था बहुत पहले से, तो हम लोगों ने विजिट करवाया था कि देखिए यहाँ पे जो है किसान मतलब पहले से खेती कर रहे हैं, और डीजल या पेट्रोल से जो लोग कर रहे हैं उसमें ये होता था कि बहुत कम एरिया, मतलब अगर उनका लागत जो है ज्यादा लग जाता था पेट्रोल और डीजल में, तो वो लोग बहुत कम एरिया में ही खेती करते थे। हाँ, उसके बाद जो है अभी जब हम लोग ये सोलर लगाए तो उसमें जो है बहुत बड़ा एरिया में हम लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है। प्लस उसमें जो है जो पेट्रोल और डीजल में जो लागत लगता था वो भी किसानों का भी बच रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है किसानों को समझाए, उसके बाद अभी हम लोग सोलर के बारे में ये कर रहे हैं। और उसके बाद जो है 3 साल में 104 सोलर का जो है हम लोग लगा लिया। मतलब ये जो 104 सोलर का बात बोल रहे हैं ये हम लोगों ने पिछले 3 साल में लगाया है। धन्यवाद सपना जी। सरबोधनी जी, नंदा वापस आना चाहूंगी। तो मैं ये नंदा ताई आपसे पूछना चाहूंगी, आपने महिलाओं के विषय में बहुत जरूरी बातें कही अपने अपने संक्षिप्त विवरण में। तो किस तरह से आपको लगता है कि ये पर्यावरणीय परिवर्तन जो हो रहे हैं, या जिसको हम जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं, पानी की कमी है, ये महिलाओं को किस प्रकार से उस पर उनका इफेक्ट होता है, और कैसे महिलाएं सशक्तिकरण के द्वारा एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है ग्रास रूट लेवल पे लेके आ सकती हैं? आपके अपने अनुभव क्या है, और आपको क्यों लगता है कि महिलाएं एक बहुत बड़ा सामाजिक मार्गदर्शन कर सकती हैं? जैसा शुरू से हमारा ये प्रोग्राम चालू हो गया, पांडुर क्षेत्र विकास प्रोग्राम, तो शुरू से माथा तो पायथा तक हमने जो मिलजुल कर सब महिलाओं ने इतना अच्छा काम किया, तो इसलिए धीरे धीरे हमारे सब महिला इकट्ठा आने लगी। सभी को मालूम हो गया कि ये किस लिए है, और आपका ही गांव है, आपका ही कुटुंब है, आपका ही बच्चे, इसलिए सब मिलजुल कर ये काम करने लगे। शुरू से जो पेड़ लगाना है, जो माथा के पायथा तक काम करना है, पानी, पहला तो बारिश बहुत होती थी लेकिन पानी ऐसा ही निकल कर जाता था, लेकिन हमारे सब महिलाओं ने, ग्रामस्थों ने क्या किया, वहां पानी नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा ही रुकना चाहिए। तो इसलिए क्या क्या करना है, तो ये भी संस्थों ने हमें बताया, और इसलिए अभी भी सब महिला इकट्ठा आने लगी। उसको भी लगा ये आपके लिए, आप अपना फायदा है, खेती का भी फायदा है इसमें। शुरू से तो खाली बाजरी का पीक निकलता था, लेकिन जब पानी रह गया तो उसके लिए आज बहुत बागायत परिसर वहाँ हो गए, जो गोभी है, फ्लावर है, आलू है, हरी मिर्ची है, मेथी की भाजी है, सब हरा हरा वहाँ निकलता है। आज बहुत सभी को अच्छा लगता है। देखो, आपको बाहर जाना था, पढ़ना जाता था लाने के लिए, लेकिन आज अपने गांव में भी आप ये निकलते हैं, तो बहुत खुश है। और ये जो हमको ये भी मालूम नहीं था क्या कि ये समूह क्या चीज है, ये किस लिए करना है, लेकिन सब महिला मिलजुल कर 2 एसटी सहल लेकर हम सैदान ठाकरवाड़ी, दरेवाड़ी, मेंढवन, यहाँ गांव में उसको घूमने लेकर चले गए, तो वो बहुत खुश हो गए कि ये कितना अच्छा है बाहर देखने। उसके बाद हमारे ये समूह चालू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे सब महिलाएं इकट्ठा आने लगी, बहुत अच्छा। और खेती में भी काम बहुत अच्छी तरह से, किसी को मजदूरी देनी भी नहीं, लेनी भी नहीं, कोई भी काम हो तो हमारी सब महिला मिलजुल कर भी ऐसे काम करती है, इसलिए हमारी सब महिला आज भी इकट्ठा काम करती है खेती में। नंदा ताई, धन्यवाद। आपने जो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य और उसको और भी सशक्तिकरण के साथ बताया कि कैसे महिलाओं ने छोटे छोटे परिवर्तन लाके गांव का और एरिया का पूरा नक्शा ही बदल देती हैं जब वो साथ में आती हैं, और वो लोकल गवर्नेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। क्योंकि मेरा भी अपना अनुभव यही है कि महिलाओं का गवर्नेंस में डिसीजन मेकिंग रोल भी होना चाहिए, जहाँ पे वो निर्णय ले सकें। आप कुछ और भी बोलना चाहती हैं?
मैं ऐसी बोलती हूँ कि ये हमारा छोटा सा गांव था, लेकिन जब ये हमारे पांडुर क्षेत्र विकास, इंडो जर्मन पांडुर क्षेत्र विकास कार्यक्रम ने जो हमारे गांव में जो अच्छी तरह से काम किया, जैसे पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन आज हमारे गांव में महाराष्ट्र में जलाकर पुरस्कार ये भी लिया है। हमारे सब ग्रामस्थ, हमारी सब महिला शौचालय के लिए बाहर जाते थे, लेकिन हमने सब मिलजुल कर, हमारी जो पानलोट कमेटी है, हमारी समिति है, हमारी ग्राम पंचायत है, उसी ने मिलजुल कर सभी का शौचालय तैयार किया। तो हमारे सरपंच मैडम को भी निर्मल ग्राम पुरस्कार 1 नंबर में वो भी मिला है। हमने कोई भी ये छोड़ा नहीं है, बख्शिश छोड़ा नहीं है। जो जलाकर पुरस्कार ये मिला है, जो निर्मल ग्राम पुरस्कार ये भी मिला है, जो नाबार्ड ने हमको महिलाओं के लिए 2,76,000 निधि दिया था, तो उसको अच्छी तरह से हमने खर्च किया, तो उसको अभी हमको महाराष्ट्र में पहला 1 नंबर का नाबार्ड ने हमको बख्शिश दिया है। तो ये भी हमको हाँ, आपका बहुत धन्यवाद। और मैं आपको और आपके सारे गांव को शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप सभी का बातें सुन के कि आप सभी के गांव, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि भाखरा नंगल डैम भारत का मॉडर्न मंदिर है, वैसे मुझे लगता है कि आपके गांव, आप जो परिवर्तन ला रहे हैं वो एक मंदिर की तरह है। और बहुत सारे लोगों को, इंक्लूडिंग हमारे जैसे जो वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, उनको भी आके देखना चाहिए कि कैसे गांव वाले ये बड़े बड़े इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन के कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी क्योंकि हमारे पास समय कम है, मैं एक सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगी, और सबसे पहले शुरुआत संतोष जी से करना चाहूंगी। संतोष जी, और आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप 2 मिनट में मुझे एक संक्षिप्त इसके बारे में बताएं। और सवाल ये है कि देखिए, आप सभी ग्रास रूट लीडर्स हैं, वॉरियर्स हैं, लेकिन आप सभी हर गांव में तो नहीं रह सकते हैं। उसके लिए हमको लोकल लेवल पे लीडरशिप, ऐसे ही आपके जैसे जो पैशनेट हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं कि ये परिवर्तन आए, उसमें क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक लगे रहे हैं और ये आसान काम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये परिवर्तन लाना आसान काम नहीं है। तो आपने कैसे वो गांव के लेवल पे परिवर्तन लाए हैं, कैसे आपने लीडरशिप लाई है कि समाज और पर्यावरण जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। अगर समाज पर इम्पैक्ट आता है तो पर्यावरण को सुधार कर उसको हम सुधार सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में आपके क्या बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, क्या आपने सीखा है, कहाँ पर आपको लगा है हम फेल होते हैं? अगर आप 2 मिनट में मुझे संक्षिप्त बता पाएंगे तो मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत समझने की में मदद मिलेगी, और इस पूरे वेबिनार के थ्रू बहुत सारे लोग जागरूक हो सकते हैं। तो संतोष जी, पहले मैं जी जी आपके जी पास इसके लिए। तो इसके लिए जो हम लोगों ने जिन गांवों में सघन रूप से काम किया था, तो ग्राम स्तर पे जो हम लोगों की पानी पंचायत का गठन हुआ, फिर उसको हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पर फेडरेशन को तैयार किया, क्योंकि शुरू से भी हम लोगों की ये सोच थी कि हम लोग ज़्यादा दिन तक वहाँ काम नहीं करेंगे। परमार्थ भी जो हम लोगों को सहयोग कर रही वो ज़्यादा दिन तक नहीं करेगी, लेकिन जो प्रोसेस हमने इस गांव में शुरू की है सतत रूप से चलती रहे। जो हमारे यहाँ बहनों के जो हक और अधिकार हैं, और जो यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो रहा है, और जो वर्षा का पानी हम लोगों ने यहाँ पे संचयन का काम किया है, तो ये निरंतर रूप से चलता रहे। जो लीडर हैं वो लीडर मतलब खुद अपने आप में एक ट्रेनर है, तो कम्युनिटी लेवल के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे वो पूरा सा काम सतत रूप से चलता रहे। इसीलिए पूरे ब्लॉक के जो हमारे जनपद जालौन के 9 ब्लॉक थे, उनको हर ब्लॉक में उन लोगों ने पहुंच विकास मंच से, जो हमारा एक फेडरेशन है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उसको जोड़ा, और हर ब्लॉक से उन्होंने वहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष और इसके बाद जिला लेवल पे जिला संयोजक, पूरा सा उन्होंने पूरा उसके पद और जिम्मेदारियों को बांटा। उसके एक बायलॉज भी बनाया है उन लोगों ने, बायलॉज के साथ जिम्मेदारियां भी हैं, और जो पदाधिकारी को कितने दिन में इनको हटाया जा सकता है। इसके बाद जो जल स्रोत थे, चेक डैम का जो पानी था, तो वहाँ उपभोक्ता समूह भी उन्होंने बनाया है। जो उपभोक्ता समूह है उन्होंने वहाँ पर तय किया है कि कितने में गेहूं होगा, कितने में सब्जी होगी, कितने बीघा सिर्फ पानी दिया जाएगा, और अगर कोई 1 बीघा की सिंचाई करता है तो उस पर इसके मेंटेनेंस के लिए, इसके रख रखाव के लिए ये पैसा उनका एक आपदा कोष करके एक जो खाता है उसी में वो जमा होता है। अगर वहाँ पे जरूरत होती है तो उस पैसे को निकाल के वो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं।
इस तरह से पूरा सा ये कार्यक्रम उस कम्युनिटी के हाथ में उस तरह से वो लोग कर रहे हैं और बाकी सहयोग हम लोगों का। धन्यवाद संतोष जी, आपने ये जो हमें बताया ये बहुत ही प्रेरणादायक है। सपना जी और सरबोधनी जी, आपको क्या लगता है कि समाज में कैसे गांव गांव में ऐसे लीडर्स, ऐसे प्रेरणा समाज के परिवर्तन में भी मदद करें? जैसे बताए कि हम लोग जो है हम लोग जितने भी दीदियां हैं, बीओडी जो दीदी हैं, ठीक है, वो हम लोग अपने अपने गांव को देखते हैं, ठीक है। तो जो ऑफिस स्टाफ होते हैं उन लोगों का जब समझाने आते हैं तो उन लोगों का एक जब वो लोग नहीं पहचानते हैं एक दूसरे को, ऑफिस स्टाफ और गांव वाले, ठीक है, तो उनके बीच में हम लोग आते हैं जो हम लोग खुद के समुदाय से जुड़े हुए रहते हैं। जब ऑफिस स्टाफ उन लोगों को समझाते हैं तो उतना भरोसा नहीं हो पाता है जितना कि हम खुद उन लोगों को समझाते हैं तो हो जाता है, ठीक है। तो ये एक है कि हम लोग ऐसे समुदाय के साथ ऐसे बात करते हैं, मतलब अगर खुद का समुदाय, जब कोई एक बोलता है खुद के समुदाय से, तो ज्यादा भरोसा होता है कि हाँ ये काम होगा, ठीक है। जैसे कि हम आप लोगों को बहुत बार बताए सोलर MLI के बारे में, ड्रीफ के बारे में, ठीक है। तो जब ऑफिस स्टाफ आते थे बात करने के लिए, ठीक है, तो वो लोग जो है उतना मतलब नहीं भरोसा करते थे, ठीक है। जब हम लोगों ने बताया अपने समुदाय को, अपने जो SHGs होते हैं उन लोगों को समझाया, तो फिर जाके वो लोग माने, ठीक है। और अगर सीखने की बात करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है इतने दिनों में, तो हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर कंटिन्यू किसी चीज को करते हैं, मतलब प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन हम लोगों को जरूर मिलेगा। क्योंकि जब हम लोग सोलर लगा रहे थे तो किसान मान नहीं रहे थे, और अभी तक हम लोगों ने 104 किया। उसके बाद जो है हम लोग खेती रक्षक का बात किए, तो खेती रक्षक शुरू में तो किसान बोलते थे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोगों ने एक साल में 30 किया, उसके बाद आने वाले सितंबर तक हम लोगों ने और 100 लगाने का ये किया है। और दूसरा बात, ये सबसे अच्छी बात है हम लोग के लिए, तो किसान खुद बोल रहे हैं कि हम लोगों को खेती रक्षक लगाना है, ठीक है। तो ये समुदाय के पास थोड़ा सा उदाहरण हम लोगों को मतलब सिखाने की ये होती है। तो जब हम लोग सिखाते हैं तो किसान भी समझते हैं हम लोग का बात। सपना जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो बोला वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको बोलने से ज्यादा उदाहरण करके दिखाना पड़ता है, लीडिंग बाय एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं। तो आप बोल ही नहीं रहे हैं, उसको करके भी ग्राउंड पे दिखा रहे हैं, वो बहुत प्रेरणादायी है। और अब नंदा ताई, आप, क्योंकि आपके गांव ने बहुत सारे ऐसे पारितोषिक आपको मिले हैं, बहुत आपका रिकॉग्निशन है, तो आपको कैसे लगता है, क्योंकि हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन से आगे की पीढ़ी में ये ज्ञान कैसे जाएगा, कैसे जो युवा हैं वो ये लीडरशिप लेंगे और गांव के सतत जो प्रयत्न है, सतत जो विकास है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, इसके लिए आपका क्या योगदान है, क्या क्या आप कर रहे हैं ग्राउंड पे, उसके बारे में बताएं। अभी तो हमारे गांव में ये तय किया है कि बोरबंदी है, कोई ने भी बोरबंदी नहीं लेना है। जो लोग उसको लिए 10,000 रुपए दंड रखा है, इसलिए किसी ने भी अभी तक बोरबंदी लिया ही नहीं है। यहाँ बोरबंदी है हमारे गांव में। और एक बताती हूँ, ये जो हमारे बच्चे लोग हैं, तो जैसे हमने काम किया है वैसे वो भी काम अभी भी कर रहे हैं। जैसे सब बच्चे लोग जो जॉब में पुणे में है, बॉम्बे में है, लेकिन वो उसका ख्याल सब गांव का है, वो गांव का ही विचार ज्यादा करते हैं। हमारे जेडपी में उसी ने कंप्यूटर दिया है, वाचनालय रखा है, बच्चों लोगों को खाने का टिफिन दिया है। तो ऐसा एक कट्टा मिलजुल कर पेड़ लगाने का बहुत अच्छी तरह से, जो हमारी अगली पीढ़ी जो है, जैसे आपके माँ बाप ने काम किया है वैसे वो बच्चे लोग भी बहुत हमारा गांव का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है। आगे 2 बरस हो गए, कोरोना हो गया था गांव में 1-2 आदमी को, तो वो आदमी को बच्चों लोगों ने फंड तैयार किया और उसको मदद निधि के रूप से हॉस्पिटल का बिल भराया। तो ऐसे हमारे बच्चे लोग बहुत अच्छा काम हमारे गांव में करते हैं, इसलिए हमारा पूरा विश्वास है आगे की पीढ़ी जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। और एक मेरा मैं एक बताती हूँ, अभी 15 दिन हो गए मेरी सासू माँ चली गई, तो उसके नाम पर हमने एक बहुत अच्छा पेड़ लगाया।
उसका ख्याल रखने के लिए। तो ऐसा बहुत, हमारी थोड़ी मातृभाषा मराठी है मैडम, लेकिन थोड़ी हिंदी टूटी फूटी हो जाती है, तो इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। तो जो हमारी पीढ़ी है तो अगले भी बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। और जो जो लोग है आज, कोई किसी के भी घर में कोई झगड़ा, कोई पीने वाला ऐसा आदमी नहीं देखेगा। आज हमारा जो गांव है पूरे बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। तो ऐसा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जो कोई सवाल हो तो और भी हमको पूछ सकती हूँ। धन्यवाद नंदाताई, आपका भी, क्योंकि आपने भी एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। सारे गांव वाले, दूसरे गांव के लोग जब इस वेबिनार को सुनेंगे तो मुझे लगता है आप सभी से बहुत प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है। हम वैज्ञानिक भी जानते हैं कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको करना, चाहे संतोष जी हो, सपना जी हो, सरबोधनी जी, नंदा जी, आप जो कर रही हैं, आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही हैं और उसको आगे की पीढ़ियों तक ले जा रही हैं। तो मैं इस वेबिनार में आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बहुत दूर दराज के गांवों से इसको ज्वाइन किया है। बहुत अच्छे आपने जो आपके अनुभव है उनको शेयर किया है। अभी मैं ईशा जी से ये अनुरोध करूंगी कि वो ऑडियंस से क्वेश्चंस लें, और अगर ऑडियंस के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। कि हमारे पास 3 अच्छे पैनलिस्ट हैं जो मेरे ख्याल से जरूर आपकी बात सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर ध्यानी, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नंदा ताई, आप सबके जो आपका काम में इतने यूनिक एस्पेक्ट्स है। संतोष जी, आपने दिखाया है कि काम आप कैसे सरकार से जोड़ सकते हो उसको बढ़ाने के लिए। नंदा ताई, आपने दिखाया है कि महिला सशक्तिकरण से कितना सारा काम हो सकता है गाँव में, जो चलते रहता है और हमारी पीढ़ी में नहीं, आने वाली पीढ़ी में भी चलता रहेगा। और सपना जी और सरबोधनी जी, आपने बहुत काम किया है लोगों के साथ, कि लोगों के भाषा में उनको कैसे समझा सकते हैं कि आगे जाके हमें क्या करना चाहिए। और वो ट्रांसलेशन का जो काम आप कर रहे हो बहुत मुश्किल और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम, आई नो हमारा समय थोड़ा हो चुका है, लेकिन हम 2-3 प्रश्न लेते हैं ऑडियंस से। एक जो आया है इज, जो आप जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रहे हो अभी आपके समुदाय के साथ, उसके लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कैसे और क्या सहायता की जरूरत है, ये हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं। शायद हम सरबोधनी जी आपसे शुरू करेंगे, और फिर संतोष जी और नंदा ताई आप भी बता सकते हैं। मेरा ये रहेगा मैम कि जो जिस जिस काम में हम लोगों ने काम नहीं शुरू किया है जिस पंचायत में, तो उस पंचायत में भी हम लोग काम शुरू करेंगे, जोड़ेंगे। और उस पंचायत के गांव से भी हम लोग काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतलब अपना काम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह जागरूक करने का काम करेंगे, लाखपति किसान को बनाने का काम करेंगे। आप लोगों से भी ऐसा रहेगा, जो मदद कर सकेगा तो आप लोग की तरफ से प्रोजेक्ट देने का हम लोग को यही आशा रहेगा। थैंक यू सरबोधिनी जी। संतोष जी, आप कुछ कहना चाहते हो? जी, ने उत्पादन के बारे में थोड़ा बात किया है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ है तो बताइए। बेसिकली ये है कि इस पे जो सहयोग किए कि और हम लोग जो क्लाइमेट चेंज और उस तरह से जो ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें उस तरह से, और हम लोगों को एक टेक्निकल अगर कोई एक ट्रेनिंग इस तरह वेबिनार में एक नॉलेज अगर हम लोगों को शेयर हो, तो जिससे हम कम्युनिटी लेवल पे और उसको जो हम लोगों के पास ग्रास रूट का और उस तरह का जो हमारे कैडरों के पास जो ज्ञान है उसमें टेक्निकल और अगर सपोर्ट मिल जाए तो उसको बहुत अच्छे व्यापक तरीके से और काफ़ी उस तक ले जा सकते हैं। और जो हमारे मॉडल है वो ऐसे पॉलिसी में कुछ इस तरह से अगर उसको किया जाए कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में, पूरे प्रदेश में, पूरे मतलब पूरे भारत देश में जहाँ जैसी की स्थिति, इन मॉडलों को वहाँ पे अबाउट मतलब उनको जोड़ा जाए, जिससे मतलब एक अच्छा परिवर्तन हमारे भारत देश में और अन्य कंट्री में इसका हो सकता है। क्योंकि जो वाटर लेवल है, अगर हमारे यहाँ पे हम लोग अगर रिचार्ज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ के लोगों को वो वाटर मिले, का वो 500-200 किलोमीटर के जो दूर के लोग हैं उनको वो वाटर मिल सकता है। तो ये मतलब सब लोग अगर इसको समूह रूप से एक
अभियान के रूप में अगर ये काम करेंगे तो इसका मतलब रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाई देगा और जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम सब जोड़ सकते हैं तो हमारा काम बहुत आगे बढ़ सकता है, और हम कैसे वो टेक्निकल सपोर्ट जो एनजीओ के साथ अभी नहीं है वो कैसे ले आ सकते हैं। नंदा ताई, आप कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में? अभी वाटर बजटिंग कैसा करना अच्छी तरह से, पानी का ख्याल कैसा रखना। क्या होता है, बारिश कभी पड़ जाती है कभी नहीं पड़ती, तो इसलिए वाटर बजटिंग करना चाहिए। और भी अभी भी हमारे लोग क्या करते हैं, पानी देखकर खेती बनाते हैं। पानी ज्यादा है तो करेंगे, नहीं तो हर बार ये छोटे छोटे चीजें बनाते हैं, लेकिन पानी का ख्याल नहीं रखते। आज इतने बरस हो गए, लेकिन हमारे गांव में जो टैंकर बोलते हैं ना, पानी का टैंकर, अभी भी कभी भी नहीं। जे ये पांडु क्षेत्र का कार्यक्रम हो गया ना, उसके बाद हमारे यहाँ गांव में टैंकर भी नहीं आए। इसलिए वाटर बजटिंग रखना बहुत अच्छा है, और सभी को मैं बताती हूँ का पानी का ख्याल अच्छी तरह से रखना चाहिए। बहुत सही बात है नंदा ताई, क्योंकि अगर हम सिर्फ वाटरशेड डेवलपमेंट का काम करते हैं वाटर स्टूवर्डशिप के बिना, तो वो पानी बहुत जल्दी से खत्म हो जाता है। हमने बहुत सारे गांव में ये भी देखा है कि वो प्रोजेक्ट फिर उसका बहुत शॉर्ट टर्म हो जाता है। हमारे ऑडियंस में काफी सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो शायद हम आपके जो संस्था के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है जिसके साथ हम बात कर रहे थे लॉजिस्टिक्स के लिए, शायद हम उनका ईमेल एड्रेस भेज सकते हैं इन लोगों को। जो भी हमारे पैनलिस्ट से कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे info@ecobari ईमेल आईडी पर प्लीज मेल भेज दीजिए, और हम जरूर आप उनसे कनेक्ट कर लेंगे। मैं ईमेल आईडी अभी चैट में भी डाल दूंगी आपके लिए, तो आप इनसे और भी बातचीत कर सकते हैं। क्या हमारे ऑडियंस के कोई और क्वेश्चंस है? क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा हो गया है, तो अगर नहीं है तो फिर हम रैप अप कर सकते हैं। ओके, मुझे लगता है कि इतना ही था। जो भी आप हमारे पैनलिस्ट से बाद में बात करना चाहते हैं हम कनेक्ट कर लेंगे। और अभी मैं डॉक्टर मार्सेला डिसूजा, हमारे वाटर सेंटर ऑफ रेजिलियंट स्टडीज के डायरेक्टर को इनवाइट करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करने के लिए। Thank you very much for inviting me to this. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय और विचार के लिए। सपना जी, सरबोधनी जी, संतोष जी और नंदा जी, आपके किस्से सुन के हम इस मुद्दे और इसके समाधान को अब बेहतरीन रूप में समझाते हैं। आप सबके टीम्स को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने परमात्म से धीरज और गौरव जी, सिनी से आलाम और सुभानकर जी, और वाटर से प्रशांत और सुदाम जी, जिन्होंने हमको बहुत सहायता दिया है ये प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स में। बहुत धन्यवाद। I would like to say a very special thanks to Professor Anil Kumar Gupta and Dr. Shalini Dhyani for setting the context and helping us to tie the ground level discussions together with the national and international priorities. We're very grateful for your time and your insights. I liked very much the questions that were put to the panelists, by Shalini. They were so insightful and helped to elicit that depth of work that our practitioner and village primary participants could share with us. I was just thinking about the questions and the presentation of Professor Anil Gupta at the onset, the concerns, the need that our country has to face if we have to look at sustainability. And on this day of the UNCCD's Day for Combating Drought and Desertification, and I think Professor Gupta, our panelists have been able to show us a way of how we can take it forward. I was trying to link your presentation and what the panelists were talking, and it was so insightful.
I'm sure we could get a lot more insights from you as to how we could link, the primary stakeholders to take this forward. So we'd really like to keep in touch and connect with you to see what can we do to really make a major difference in our country as we go forward, particularly as we think of the 2030 agenda, the UN agenda that we all globally have to face. But to continue, I want to thank the Water, WCRES and Ecobari teams who were very involved in this webinar, especially the ecology, communications, and the technical teams who helped us to put together. I would like to thank you in a very special way for bringing out a webinar with very unique panelists. We normally have webinars, with the speakers who are either scientists or NGO practitioners and things like that. But today you got us to the real change makers. I want to thank you for this and for this concept. I want to thank our audience. We know that many had registered, and it's not always easy to participate, but we know they will get the link. And those of you who were participants, thank you for being with us today, because I'm sure we all, looking out for the phone numbers and connects with these participants, gives us an insight that we got the real panelists who make the difference. Thank you so much for your interest. And in case you'd like to know any more about, stay updated with Ecobari. And you can always add your mailing list to the Ecobari website. And we hope that together, we can only join our hands and forces together to make a serious effort to addressing the needs of land restoration and ecosystems restoration that our country needs. Thank you very much and have a good rest of the day.